Apex News, India, Northeast. नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। शिलोंग के खिंदेलड में 13 जून को सैकड़ों लोगों ने मणिपुर में जान गंवाने वाले 6 नगा लोगों को श्रद्धांजलि दी। नगा एल्डर्स फोरम शिलोंग के आयोजन में हुए कैंडल लाइट विजिल में विभिन्न समुदायों के लोगों ने प्रार्थना की और शोकग्रस्त परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई। Of the Naga people, we have so many CSOs, NGOs and student bodies all around. Even in Manipur, if you look at it, or in Nagaland or any parts of the India, if you look at it, there are societies and NGOs who are already raising their voice. In fact, it's not only individuals, but also the government agencies and many other CSOs are already raising their voice on this. And so I think it's time for the government to think carefully and listen to the voice of the cries of the people and take some action to it. Because as you see, the situation really is. The president of the Naga Elders Forum, Shillong. 1 2 hello. Hello check 1 2. Hello check 1 2. 1 2 hello check 1 2. Yeah, as you see, the Nagas all over the world are grieving for the death of our people, especially the 6 people, as you see in the banner, that they have been tortured and they have been killed, and for which we are here today. Our killings going on almost every day, and this is taken a blind eye by the mainstream. Even I would like to encourage the central government and also the government of Manipur to take strict action on some of these things that we are observing right now. असम के जोरहत में भारतीय वायुसेना का अन-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सहित 5 कर्मियों की मौत हो गई, जबकि को पायलट घायल अवस्था में बच गया। दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। पूर्व पर्यावरण नियामक नबा भट्टाचार्य ने कहा है कि मेघालय में वैज्ञानिक कोयला खनन के लिए 100 हेक्टेयर की सीमा छोटे खनन ऑपरेटर्स के लिए बड़ी बढ़ा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों में ढील देने से न्यायिक हस्तक्षेप के कारण फिर से कोयला उद्योग पर प्रतिबंध लग सकता है। As an expert on this, particularly the EIA, I would like to say that scientific mining was the need of the hour subsequent to the ban imposed by Honorable NGT and upheld by the Honorable Supreme Court. But the question remains here is being bound by area, which earlier also I have articulated. You see, if you see the conditions put by myself and my committee in while giving approval for the 3 mines, scientific mining, we have put a number of conditions, almost 70 conditions for the protection of the environment, safety of the miners, and other prerequisite so that the people are not impacted. But here the question I also feel very strongly, and it is not an afterthought, that the area needs to be also brought down rationally so that there is a level playing field. However, all or most of the conditions like safety, treatment of the water and other issues needs to be taken care of even in small holdings. They are all taking up with the center. I am also in discussion with friends, colleagues in the Environment Ministry, and particularly it is in the domain of the Ministry of Coal, Ministry of Mines, to bring down that area restriction.
which will do a lot of good. But again, I'll repeat, being from the environmental background, heading the SCSC for 2 terms, it is imperative that the environment must be the priority at all costs. असम कैबिनेट ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड की सीधी जरी प्रक्रिया रोकने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कदम अवैध प्रवासियों को आधार प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया गया है। And some district has even crossed 100% of the targets. Some district has gone up to 114%, 115%. So there is every apprehension that even after 100% saturation, who are taking these Aadhaar cards? We want to fully prove that no illegal immigrants is taking advantage of Aadhaar. Cabinet has decided to stop issuance of Aadhaar card for any person more than 18 years of age. However, for children below 18 years of age, Aadhaar will be continuously provided. But no one will get Aadhaar if the citizen is of 18 plus. If at all there is some genuine person, then Deputy Commissioner has to send a proposal. Government will approve, but not at the Deputy Commissioner level or DC level. No more Aadhaar card will be issued to the citizen having more than 18 years of age. We want to stop the leakage in issuance of Aadhaar. It is for all the time to come. Complete ban. बलूचिस्तान से मिली जानकारी के अनुसार बलूच सामूहन ने इंसानी आज़र पर 18 पाकिस्तानी सैनिकों के शाओ पाकिस्तान के पंजाब प्रशासन को सौंप दिए हैं। इनमें एक मेजर और 2 कैप्टन भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब समय हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Green Haven, Shillong, where luxury meets the serenity of nature. Nestled in the misty hills of Shillong, Green Haven offers Step into elegant rooms and thoughtfully designed suites crafted for comfort, relaxation, and unforgettable moments. Whether it's a romantic getaway, a family vacation, or a refreshing business stay, every experience here feels warm, personal, and truly special. Wake up to the beauty of Meghalaya, savor locally inspired flavors, and unwind in a calm atmosphere that blends modern luxury with eco-friendly living. आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मंदिर हमला मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। फैसले के बाद देश भर में आतंक और धार्मिक स्थलों पर हमलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर चर्चा तेज हो गई है। सुना होगा कि चीन उइगर मुसलमानों पर कितने अत्याचार कर रहा है, लेकिन इन्हीं उइगर मुसलमानों ने ऐसा कांड कर दिया जो आपके होश उड़ा देगा। दरअसल थाईलैंड की अदालत ने 2 उइगर मुसलमानों को मंदिर पर हमला करने के लिए फांसी की सजा सुना दी है। थाईलैंड की एक अदालत ने साल 2015 में बैंकॉक के एक प्रसिद्ध एरावान मंदिर में हुए बम धमाके के मामले में
2 चीनी उइगर मुसलमानों को मौत की सजा सुनाई है। इस धमाके में 20 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 120 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित एरवन मंदिर हिंदू देवता ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ पर थाईलैंड के हिंदू भगवान ब्रह्मा की पूजा करते थे, लेकिन इसी मंदिर में 2 उइगर मुसलमानों ने आतंकी हमला कर दिया। इसी अपराध के चलते अब इन दोनों उइगर मुसलमानों को फांसी पर लटकाया जा रहा है। दोषी ठहराए गए दोनों आरोपियों की पहचान यूसुफ मिराइल और बिलाल मोहम्मद के रूप में हुई है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि मंदिर पर हमले के लिए 2 मुस्लिम अपराधियों को फांसी की सजा दी जा रही है। बताइए, चीन के डर से उइगर मुसलमान चीन के अंदर अपने मन से दाढ़ी नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख पाते, महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाती, मस्जिदों को चीनी कानून के हिसाब से बनाया जाता है। चीन ने तो उइगर मुसलमानों के लिए 29 नामों की एक लिस्ट तक जारी कर रखी है, जिसमें कहा गया है कि उइगर मुसलमान चीन में अपने बच्चों के नाम मोहम्मद, जिहाद, इस्लाम, इमाम, अजहर और सद्दाम नहीं रख सकते। ऐसे 29 नाम बताए गए हैं। लेकिन जब यही उइगर मुसलमान चीन से बाहर निकलते हैं तो दूसरे देशों में जाकर हिंदू मंदिरों पर हमला करते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि थाईलैंड में कई मशहूर हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनमें भारतीय और थाई वास्तुकला शैलियों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। थाईलैंड के बौद्ध भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि दोनों संस्कृतियों के बीच गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। हैरानी की बात देखिए कि एक शिव मंदिर को लेकर भी थाईलैंड और उसके पड़ोसी देश कंबोडिया के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है। ये दोनों देश एक शिव मंदिर के लिए आपस में लड़ रहे हैं। दोनों देशों का दावा है कि मंदिर उनके क्षेत्र में है। वैसे 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रीह वेहियर नाम के इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड इस शिव मंदिर को अपने पास लाना चाहता है। इसी को लेकर कई बार दोनों देशों के बीच हमले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नेहाती नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अभिजीत चटर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या का प्रयास, बलात्कार, वसूली, धमकी और अवैध हथियार रखने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। अरेस्ट क्यों किया? अभिजीत, अरेस्ट क्यों किया आपको? अभिजीत, আরে দাদা কি করছেন? গায়ের উপর চলে আসছে। কিছু বলবেন? কারা মারলো আপনাকে? अभिजीत, क्यों अरेस्ट किया गया? কিছু বলবেন? দাদা কিছু বলবেন? অভিজিৎ দা কি হবে? কারা মারলো আপনাকে?
कराची से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान खींचा है। वीडियो को लेकर व्यापारिक चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों में काम करने को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। कर्नाटका में एक किसान पर आरोप है कि उसने सेवाओं में देरी और परेशानी से नाराज होकर एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून 2026 से भारतीय सेना के 31वें आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। उन्हें सेना के आधुनिकीकरण और कई महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों में योगदान के लिए जाना जाता है।
खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News, India, Northeast.